first chapter, crops and production. So before going to crops and production, then we have to know what is crops and what is production. Crops means different type of food materials, it is including all type of pulses, cereals, that means maize, wheat, rice, then pulses, moong, tuber, dal, beans, all type of vegetables. So that is known as crops. The production means how these type of crops, how these type of cereals, how these type of cereals or pulses that we produce. So what is the factor? What is the factor for all these type of crops? The production of crops need. So these are the methods. These are the methods that for production. Number one, agricultural practice. Number two, basic practice of crops. Number three, preparation of soil. Number four, plough. Number five, sowing. Number six, adding of manure. Number seven, irrigation. Number eight, harvesting. Number nine, storage. So first of all, agricultural practice. Agricultural practice means very earlier time. Earlier time means before 10 years, before 20 years. What type of practice was there in agriculture? People were using very old methods. Old method means they plough the land with the help of wooden plough, and they use various type of tools. That is very olden method. So that's why the production was not very large in that time. So this is practice. This is the agricultural practice. Then basic practice of crops. Basic practice means whenever you just start production. So what is the basic practice? Basic practice means that we have necessity of land, necessity of tools, necessity of modern tools, necessity of old tools. So these are the things that is very necessary for crop production. So this is basic practice of crops. So number three, preparation of soil. Preparation of soil means this is the, take for example, this is the land. This is a piece of land. Whenever we just start to production, then this land, in this land the soil is very hard. The soil is very hard. So in this hard soil, if you start to sow the seed, then the seed cannot be, the seed उसका जो मिट्टी है, मिट्टी का अंदर जा नहीं पाएगा. इसलिए तो खेती करने से पहले यानी बीज को डालने से पहले हमारे को सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ेगा. मिट्टी को पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. मिट्टी में तो प्रिपरेशन नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स दिस इज द स्टेज वेयर वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपर्ली फॉर प्रोडक्शन. सो दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Plough. What is plough? Plough means the type of process by which the soil is break down into small pieces by various type of tools. So in the olden time we used wooden tools, but now in modern days we just use tractor, power tiller and other type of tools are there. So whenever we soil the plough, then this plough, whether it is the wooden plough, whether it is the modern, that means your tractor, your power tiller, so then this tool break down the soil into small pieces. So now the soil is break down into small pieces. So after break down into small pieces, then there is one type of leveling is there. Leveling after plowing, leveling is very necessary. क्योंकि लेवलिंग नहीं करेंगे तो ये जो मिट्टी बड़े टुकड़ा है तो जमीन में ऊंचा नीचा होगा. इसीलिए हर जगह पे पानी कहीं जम जाएगा, पानी कहीं नीचे हो जाएगा, पानी कहीं ऊपर हो जाएगा. इसीलिए इसको लेवलिंग करना बहुत जरूरी है. लेवलिंग के लिए सो वन टाइप ऑफ ड्रेन इज यूज टू लेवल द सॉइल. सो व्हेनेवर द टूल्स, व्हेनेवर द प्लाव, व्हेनेवर द ट्रैक्टर रन्स, देन द wood, this type of wood, then you roll down into the soil, piece of soil. This way, the piece of soil break down into small powder. Small powder मतलब ये थोड़ा powder टाइप का हो जाता है. एकदम मिट्टी, लैंड का जो मिट्टी है, ये टुकड़ा जो मिट्टी है पूरा ग्राइंड हो जाएगा, यानी चूना हो जाएगा, तो पाउडर टाइप का हो जाएगा. This is the stage of ploughing. Ploughing is the two stages. After ploughing, leveling is very necessary. Leveling, how to level?
one type of long vein is there. So it is put in the tractor, it is put in the bullock. So when the bullock runs, this vein will roll down into the soil, roll down into the piece of soil. So when this vein will run over the piece of soil, then this piece of soil will be break down into small pieces just like powder. So then after the land, whatever soil inside the land, that will be very level. So then after sowing, so when the land is properly level, properly plain, and the soil is grind into small type of powder, then sowing. Sowing means this is another type of process by which we sow the seed on the ground, on the soil. Sow means in previous time we just sowed the seed by hand. So whenever you sow, whenever you seed, sprinkle the seed here and there in olden time by hand. Then this method was very old method, and this method is not profitable for the farmers, because whenever the farmers sow the seed at a time, at a place, there is 10, 20, 30 seeds drop there. So whenever 20 seeds drop here, then 20 plants will go down here. So here now see, this is one piece of soil here, and at a time if 10 plants go there, then the 10 plants cannot get proper nutrition from the soil. So that is very old method, and in this method, so farmer gets very lost. So now there is one type of tool. Modern tool is there, one type of machine is there. So that machine sow the seeds. Whenever the machine sow the seeds, then the seeds drop equal distance. Equal distance means suppose the one seed is drop here, another drop there, another same distance drop here. So this is very profitable for the farmer, because one plant grows here, another plant here, same distance. So each and every plant will get proper nutrition. So this method is very, I think this method is very profitable to farmer. But in the olden time, whenever the farmer throw the seeds by their hand, that was very wrong method. So now people are using the modern method. So this is the sowing step. Then after manure. Manure means, what is manure? Manure means, suppose this land, this is the piece of land where there is soil there. So if the nutrient is very less here, मीन्स मिट्टी में न्यूट्रिएंट नहीं होगा। जैसे कि हमारा शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, ये हर चीज़ नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे को बीमार हो जाएगा। इसीलिए हमारा शरीर जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट करने का मतलब क्या है? तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने का बाद में दिखता है कि हमारा शरीर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कमी है जिसकी वजह से हमारे सर दर्द करता है या पाँव में रुकावट होता है, नजर में कम आता है। इसी प्रकार मिट्टी में भी न्यूट्रिएंट है, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिएंट नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो मिट्टी में जो प्लांट हमने किया, जो सोइंग किया, जो प्लांट यहाँ पे उठेगा वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर बढ़ेगा नहीं है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं? एडिंग मैनर। एडिंग मैनर मीन्स देन वी ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में टू टाइप फर्टिलाइजर, एक वन इज नेचुरल फर्टिलाइजर, अनदर इज आर्टिफिशियल। Artificial fertilizer. Natural fertilizer is what you get that. Natural fertilizer means your compost, your cow dung. So this is natural fertilizer. So natural fertilizer is very utilized for soil. So artificial fertilizer, that is the chemical thing. Chemical, this is the combination of chemical. So the artificial fertilizer, if we add more and more artificial fertilizer in the soil, then the soil will be वेरी बैरन। बैरन मीन्स सॉइल का जो शक्ति है, मिट्टी का अंदर जितना शक्ति है, जितना न्यूट्रिएंट है, ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिएंट को खींच लेगा, छिला में मिट्टी पूरा बैरन हो जाएगा, यानी पूरा समाप्त हो जाएगा, उसका पावर कुछ नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सके हम जितना नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। जब जमीन में हमने सोइंग किया, सीड जब हमने डाल दिया, सीड डालने का बाद में जब प्लांट ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होने का बाद में क्या करना चाहिए? प्लांट जब ग्रोथ नहीं होता है तो पता चलता है कि मिट्टी में कुछ कमी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? आड़ी मैनर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मैनर हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉडर्न जो ये चल रहा है इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज होता है और नेचुरल फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करते हैं। जब फर्टिलाइजर जब यूज़ किया जाता है, यूज़ करने का बाद में मिट्टी के अंदर जो कमियाँ है,
जो न्यूट्रिएंट कमी है, whatever nutrient is less in the scarcity in the soil, then this manure fulfill the nutrient. ये मैनर को यूज करने के बाद में वो मिट्टी का जो कमियां है उसको पूरा कर देता है, वो प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट बढ़ता है, उसका बेहतर प्लांट ग्रोथ होगा और इतना ही उसका प्रोडक्शन होगा। प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, इसलिए प्लांट का ग्रोथ के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है। इसलिए मिट्टी का अंदर न्यूट्रिएंट कम ही होता है, दिखाई दिया जाता है मिट्टी में जो प्लांट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमारे को ये मैनुअल यूज करना बहुत जरूरी है। दिस इज सिक्स्थ है ना इरिगेशन। दिस इज द सेवेंथ स्टेप। Irrigation means this is the type of process by which water is supplied to the land from a long distance. Irrigation मतलब हमारी इंडिया का जो मानसून है, इंडिया का मानसून मीन्स अनसर्टेन। भारत में जो मौसम है ये अनिश्चित है, कब होता है कब नहीं होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कि हमारा जून जुलाई अगस्त में बारिश होना ये मानसून सीजन है, वो सीजन में बारिश होना जरूरी है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडिया का जो मानसून है अनसर्टेन है, वो अनिश्चित है, कभी बारिश होता है कभी नहीं होता है, कभी 3 महीना होता है। इसीलिए जो फसल हमने अभी सोइंग कर दिया सीड, यहाँ पे अभी जो प्लांट है थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, इसके बाद में तो उसको पानी सप्लाई नहीं करेंगे, ये जमीन पूरा मिट्टी फट जाएगा, फिर वापस बड़े बड़े पीस हो जाएगा, जमीन जब हार्ड हो जाएगा तो जो ये जो प्लांट का रूट है तो रूट पूरा सूख जाएगा, जल जाएगा। इसलिए इरिगेशन मेथड जो है, इरिगेशन मेथड के माध्यम से तो दूर दूर से पाइप के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, तो नदी से पानी को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, वो कैनाल के माध्यम से वहाँ पे सप्लाई किया जाता है जमीन को, और जमीन में जो पानी आता है फिर ये प्लांट का ग्रोथ होता है। इरिगेशन मतलब एक प्रकार की प्रणाली है, एक प्रकार की प्रोसेस है, मेथड है, जो मेथड के माध्यम से दूर से पानी को सप्लाई की जमीन तक सप्लाई किया जाता है। ये जो पानी सप्लाई होता है वो कैनाल के माध्यम से हो सकता है, पाइप के माध्यम से हो सकता है, कभी कभी होता है कुआं भी होता है, तालाब भी होता है, और आजू बाजू में तालाब का पानी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। दिस इज इरिगेशन। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर द क्रॉप इज ऑलरेडी मैच्योर, यानी कि ये जो प्लांट में हमने जो तुबर लगाया या गेहूँ लगाया या धान लगाया, पैडी हो, whether it is paddy, whether it is wheat, whether it is maize, whatever crops are there, whenever the crops is already ripened means पक जाता है, पक देने के बाद में ये प्रणाली यूज किया जाता है। पक देने के बाद में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी उसको काटते हैं, तो राइस हो, पैडी हो, माइज हो, जो भी है इसको काटते हैं। लेकिन इसमें भी मेथड है, ओल्ड मेथड है और एक है मॉडर्न मेथड है। ओल्ड मेथड में सिकल होता है, सिकल दिस टाइप ऑफ टूल्स, ये सिकल के माध्यम से पहले लोग काटते थे, उसको काटने के बाद में उसको बंडल करते थे, फिर उसको जमीन में सुखा देते थे, फिर बाद में घर पे ले आते थे, उसको भी पीटते थे। तो ये है ओल्ड मेथड। लेकिन अभी हार्वेस्टिंग होता है, टूल्स होता है, एक मॉडर्न मशीन होता है, जो मशीन पूरा जमीन में चलता है और जमीन में जो भी पैडी है, जो भी धान है, जो भी गेहूँ है, जो भी माइज है, उसको पूरा काट लेता है। काटने का साथ में भी तो उसका जो क्रॉप्स होता है वो कलेक्शन हो जाता है, तो डायरेक्ट बैग में जाता है, डायरेक्ट पैक हो जाता है। ये हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग एक मेथड होता है। थ्रेसिंग मीन्स कभी कभी आप देखते हैं तो जो धान होता है और जो गेहूँ होता है, इसमें उसकी एक प्रकार की फ्लॉक आता है, यानी ये एक धान का फ्लॉक है, यहाँ पे धान लगा हुआ है, यहाँ पे धान लगा हुआ है, ऐसा पेंटा होता है। लेकिन उसको थ्रेसिंग क्या करते हैं, थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के तो जो लकड़ियाँ होता है, लकड़ियाँ हम पीटने के बाद में यहाँ पे जो ये फ्लॉक है, यहाँ पे जो फ्लॉक है वो दूर हुआ है, अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होकर नीचे गिर जाता है। नहीं तो फिर जमीन, तो पहले ये ओल्ड मेथड है। अभी नया मेथड में क्या होता है, जो टूल्स होते हैं, टूल्स के अंदर हम उसको घुसा देते हैं, इसीलिए ये प्यूरिफाई हो गया। इसके बाद में प्यूरिफिकेशन के बाद में कभी कभी हम होता है कि इसको ज़्यादा टाइम रखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट खराब कर देंगे, इसीलिए हम उसके अंदर ऑयलिंग करते हैं। का बाद में ये कोई भी इंसेक्ट होता है उसको खराब नहीं कर सकते, इसके बाद में हम उसको स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज होता है। दिस इज द स्टेप स्टोरेज। सो क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल द फैक्टर्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मैंने बताया कि पहले ज़माने में जो खेती बाड़ी हो रहा था, वो खेती बाड़ी कैसे हो रहा था, किस प्रकार हो रहा था। पुराने ज़माने में पुराने लोग पुराना रीति रिवाज में पुरानी मेथड में करते थे,
इसके लिए प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, क्योंकि एक जमीन में जब मिट्टी का पावर कम हो जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था मिट्टी का पावर क्यों कम हो गया, तो इसमें क्या करना चाहिए ये सब आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति इसलिए कम होती जा रहा था। इसके बाद में है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स करने के लिए, जो क्रॉप्स मैंने बोला व्हीट, माइज, राइस जो भी है वो प्रोडक्शन करने के लिए उसका बेसिक क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, जमीन का जरूरत है, मिट्टी तो मेन मिट्टी, जो सॉइल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉइल के बाद में उसको प्लाव करना है, प्लाव क्यों किया है, प्लाव क्यों करने का जरूरत है वो भी बताया। प्लाव इसलिए किया जाता है, जमीन में जो मिट्टी होता है ये पूरा हार्डनेस होता है, उसको जब हम प्लाव करते हैं तो वो जो ट्रैक्टर उसका अंदर चलता है वो मिट्टी को पूरा फाड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद में हम उसको लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग करने के बाद में वो पाउडर टाइप का हो जाता है। जब पाउडर टाइप का हो जाता है, मिट्टी पूरा सॉफ्ट हो गया, मिट्टी जितना सॉफ्ट होगा, जितना मुलायम होगा, नरम होगा, उसके अंदर एयर भी जा पाएगा, पानी भी जा पाएगा और मिट्टी नरम हो जाएगा। मिट्टी जितना नरम होगा तो ये जो प्लांट बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट का जो रूट है बहुत मुलायम है, इसीलिए वो मिट्टी के अंदर जा पाएगा। लेकिन ये हार्ड होगा तो रूट जा नहीं पाएगा, जब तक रूट डीप में नहीं जाएगा तब तक एक प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए मिट्टी को पूरा सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है, स्टेज में उसको लेवलिंग करना, मिट्टी को सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने बताया सोइंग मतलब ये प्लाव मैंने कर लिया, जमीन प्लाव हो गया, बाद में जमीन को प्लाव कर लिया, उसका अंदर जो मिट्टी है, बड़े बड़े मिट्टी है, उसको जो जमीन में पूरा पाउडर टाइप का हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं कि जमीन में देखना पड़ेगा कि पानी जो हमने जमीन में अभी पानी चलाया तो पानी है कि नहीं, पानी पूरा निष्कासित करना चाहिए, पानी को पूरा निकाल लेना चाहिए और देखना है कि जमीन में कहीं नीचा ना हो। तो पानी निष्कासित होने का बाद में जब कंडीशन मिट्टी का कंडीशन सही हो जाएगा फिर सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब तो जो सीड होता है, जो बीज होता है जमीन में बेचने का, जमीन में फेंकने का, वो दो प्रकार के होता है। मैंने बताया कि ओल्ड मेथड में हम हाथ में फेंकते थे, इसमें क्या होता था कि जब हाथ में फेंकते थे एक जगह पर 10-15, कोई जगह पर 1, कोई जगह पर 25 है, जिसकी वजह से बड़ा तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे 10-15 प्लांट उठेगा वहाँ पर उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कम मिट्टी में उसको न्यूट्रिएंट पावर है, एनर्जी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो जो मशीन के माध्यम से हम इसको सोइंग करते हैं तो सेम डिस्टेंस में जाता है और सबको न्यूट्रिएंट मिलता है और प्रोडक्शन भी होता है, और क्योंकि तो प्लांट ग्रोथ होता है। सेकेंड हो गया एडिंग मैनर में बताया कि मिट्टी के जो सीड को हम खींचने के बाद में तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। प्लांट का क्यों ग्रोथ नहीं होता है, तो क्योंकि अपन पता चलेगा बाद में किसी की प्लांट के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट कमी है, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉपर एनर्जी नहीं ले पाता है। इसलिए मैनर को एडिंग किया जाता है। मैनर जब ऐड किया जाता है मिट्टी का पावर बढ़ जाता है और मिट्टी के अंदर जमीन के अंदर जितने भी प्लांट होता है उसका ग्रोथ होता है। देन आफ्टर इरिगेशन में बताया था इट इज वन टाइप ऑफ मेथड दैट बाय व्हिच water is supplied to the land from a long distance. It is by pipe, it is by canal, whatever it may be. So thereafter harvesting, whenever the crop is already ripened, crop पूरा पक गया है, तो पूरा येलो कलर में हो गया, पक गया है, उसके बाद में उसको काटा जाता है। तो इसमें भी दो मेथड होता है। ओल्ड मेथड में सिकल में काटते हैं और मशीन जो होता है मशीन में भी काटा जाता है। इसके बाद में है स्टोरेज। ये क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद में उसको जब फसल पूरा धान हो, गेहूँ हो, चावल हो और माइज हो, तो पूरा कलेक्शन हो गया, इसके बाद में हम उसको स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज जब करते हैं इससे पहले हम उसको तो अलग करते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉप्स होता है कि गेहूँ हो, व्हीट हो, राइस हो, माइज हो, जो इसका अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होता है, हार्मफुल अलग करना पड़ता है। अलग इसलिए करते हैं कि यूनियन मेथड है, सेपरेशन मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड है। कभी कभी हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है कि हैंड पिकिंग मेथड सिर्फ जहाँ कमी चीज होता है वहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड, जैसे कि हम चावल लिया है खाना बनाने के लिए, तो 500 ग्राम चावल हो या 200 ग्राम चावल हो, उसको हम हैंड पिकिंग करते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, इसीलिए उसको यूनियन मेथड हो या दूसरा कोई मेथड में हम अलग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन।